Lesson 2 from Vistas, The Tiger King. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of the story. He was famous as the Tiger King. As soon as the Tiger King was born, the chief astrologer predicted that his death would come from a tiger. He must be particularly careful with the 100th tiger. At the age of 20, the Maharaja started out on a tiger hunt. He was able to kill 99 tigers. There remained just one more tiger to complete his tally. On the third birthday of his son, he brought a wooden tiger for him. While playing with that tiny little wooden tiger, one of the slivers pierced his right hand. Infection flared in his hand and he died soon after. In this way, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको समरी पढ़ा दी थी उस दिन, वैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराजा थे प्रतिबंधपुरम में, वो हीरो थे इस स्टोरी के. उनका नाम टाइगर किंग बताया गया था. क्यों? क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तब एक एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि जब ये मरेगा तो ये किसी टाइगर के थ्रू ही मरेगा. तो उसने क्या किया, 99 टाइगर मार दिए. तो उसको एक वचन दिया गया था कि तुमने अपने 100th टाइगर से बचकर रहना है. अगर तुम्हें कोई मारेगा तो तुम्हारा 100th टाइगर ही मारेगा तुम्हें. तो उसने 99 टाइगर मार लिए और जो 100th टाइगर था वो उसने अपने बच्चे के जन्मदिन में, मीन्स जब उसका बच्चा 3 साल का हो गया था, तब उसने एक लकड़ी का टाइगर लेकर उसको गिफ्ट किया और उसके साथ वो खेल रहा था. तभी उसकी जो कार्विंग थी में उसको अच्छी तरह से उसकी प्रॉपर शेप नहीं दी गई थी, तो कहीं से कोई लकड़ी बाहर निकली हुई थी जो उसके राइट हैंड में लग गई और उससे उसकी डेथ हो जाती है. तो इस तरह से उस किंग की मौत हो जाती है और जो उसकी जो भविष्यवाणी बताई गई थी एस्ट्रोलॉजर ने कि उसकी 100th टाइगर से उसकी डेथ हो जाएगी, वो इस तरह से फुलफिल हो जाती है. ठीक है, तो ऐसे वो टाइगर की वजह से उसकी डेथ होती है. सो लेट्स सी द चैप्टर इन शॉर्ट. एट फर्स्ट, द टाइगर किंग. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He was known as the Tiger King. The Tiger King is dead. As soon as he was born, the astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. He would grow up to become the hero of the heroes, the champion of champions, but the child born under the star would one day have to meet his death. तो उसने कहा कि तुम चाहे चैंपियंस के चैंपियन हो या जितने मर्जी स्टार्स ले लो, बट एक दिन तुम्हारी मौत हो ही जाएगी और वो एक टाइगर से होगी. 10-day child speaks. A great miracle took place. The 10-day-old Jilani Jang Bahadur spoke very clearly. 10 साल का बच्चा था वो, जब उसने बोला, he told them that all those who were born would have to die one day. तो उसने कहा कि जितने मर्जी लोग जिए हों एक दिन सबने मरना ही है. There was nothing new in that. कुछ नई चीज़ नहीं है. Yes, there would be some sense if anyone could tell him the manner of his death. Everyone stood stunned. An infant born just 10 days ago was talking in such a manner. The chief astrologer told the prince that he was born in the hour of the bull. The bull and the tiger were enemies. Therefore, his death would come from the tiger. तो उसने उस एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया है, एक 10 साल का बच्चा उसको ये कह रहा था कि जिस बंदे ने अपनी लाइफ स्टार्ट की है उसने मरना तो है ही एक दिन. तो वो एस्ट्रोलॉजर ने उसको ये कहा कि तुम्हारा जब जन्म हुआ था जिस समय में, वो समय जो था वो एक बुल का समय था, मीन्स एक ऑक्स जो होते हैं उनका समय था, और ऑक्स हमेशा टाइगर का दुश्मन होता है. तो इसलिए जो तुम्हारा दुश्मन है वो एक टाइगर होगा. ठीक है, तो इस तरह से एक 10 days चाइल्ड की एक आवाज़ थी. उसमें स्टोरी आप पढ़ लेना, बिकॉज आई डोंट हैव द बुक. The Maharaja starts out on a tiger hunt. When he came of age at 20, the state came into his hand. There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja was overjoyed when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. तो उसने क्या किया, 99 टाइगर, पहला टाइगर उसने मारा और पहले टाइगर मारने के बाद उसने अपने स्टेट के जो एस्ट्रोलॉजर था उसको सेंड कर दिया, भेज दिया. ही टोल्ड दैट द महाराजा मस्ट बी केयरफुल विद द 100th टाइगर. उसने कहा कि इस फर्स्ट टाइगर से मैं क्या करूं, महाराजा को जो 100th टाइगर है उससे बचकर रहना है.
The Maharaja asked what if the 100 tigers were also killed. The astrologer declared that he would tear up all his books on astrology and set fire to them. तो उसने कहा कि महाराजा ने कि अगर मैंने 100 वाला जो टाइगर है अगर उसको भी मार दिया तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी सारी ख़त्म कर देनी है और जितनी भी बुक्स से मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी वो सारी जला देनी है, ठीक है। देन किल 70 टाइगर्स इन 10 ईयर्स। अब उसने 10 साल में 70 टाइगर्स मार दिए थे। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। और उस स्टेट ने क्या किया, महाराजा को छोड़कर बाकी सबसे बैन करवा दिया था टाइगर को मारना, हंटिंग करनी। इफ़ एनीवन डेयर टू डिसोबे ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड। और महाराजा ने क्या कर दिया था कि अगर किसी की हिम्मत हुई कि उस स्टेट में कुछ हंटिंग करने की तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी जितनी भी है, ज़मीन जायदाद सारी उससे ले ली जाएगी। द महाराजा डिड फेस सम प्रॉब्लम्स। और उस महाराजा को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई। वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। क्या हुआ कि एक बार एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर चाहता था कि उसके स्टेट में हंटिंग करनी, बट ही रिफ्यूज्ड परमिशन। और उसने उसको परमिशन नहीं दी। He could hunt other animals except tiger। उसने कहा कि तुम टाइगर को छोड़कर किसी और को हंट कर लो, बट उसने कहा कि नहीं, मैंने टाइगर को ही करनी है। तो महाराजा stood in danger of losing his kingdom itself। अब वो डर गया था कि कहीं अगर मैंने उसको मना कर दिया तो वो ब्रिटिश ऑफिसर मेरा किंगडम ही ना ले ले, ठीक है। He managed to retain his kingdom by offering a bribe of 50 gold rings worth 3 lakhs of rupees to his wife। तो उसने कहा कि मैं 50 गोल्ड रिंग्स देकर या डायमंड रिंग्स देकर तुम्हें बचा लूँगा, और जो कि 3 लाख के करीब होंगे उस जमाने में, और उसकी वाइफ खुश हो जाएगी। द महाराजा's टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स। और बाद में वो ब्रिटिश ऑफिसर चला जाता है और वो 70 टाइगर्स मारने की काबिल में हो जाता है। मैरीज अ गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विद लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। अब उसने कहा कि मैंने एक ऐसी लड़की के साथ शादी करनी है जिसके स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स होंगे। द महाराजा मिशन ऑफ किलिंग टाइगर्स केम टू अ हाल्ट। वो एक बीच में रुक गया था क्योंकि उसके स्टेट में सारे टाइगर्स मर चुके थे। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। द महाराजा डिसाइडेड टू मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद द लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसने कहा कि मैंने एक ऐसी रॉयल फैमिली के साथ शादी करनी है जिसके स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हों। द दीवान फाउंड आउट द राइट गर्ल। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम। और अचानक वो दीवान हुआ, उसकी शादी हुई और महाराजा ने हर बार 6 टाइगर को मार देना है। ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। जब भी वो वहाँ पे आता था अपने ससुराल में तो 5-6 टाइगर को मार के जाता था। इन दिस वे ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स। और इस तरह से उसने अपने 99 टाइगर्स मार दिए। अब लास्ट टाइगर उसका रह गया था। हंट फॉर द 100th टाइगर। देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू रीच हिज टैली ऑफ 100। इफ ही कुड किल जस्ट 1 मोर टाइगर, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट। उसने कहा कि अब मैं और एक अगर टाइगर मार दूं तो मेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और उसने सारी टाइगर हंटिंग भी छोड़ देनी है। ही हैड टू बी वेरी केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। उसने कहा कि मुझे काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा लास्ट टाइगर का। बट द 100th टाइगर वॉज फाउंड नो वेयर। उसने देखा कि कहीं पर भी वो 100th टाइगर नहीं मिल रहा है उसको। द महाराजा बिकम वेरी सैड। और वो काफ़ी दुखी हो जाता है। द दीवान रियलाइज्ड दैट इफ द महाराजा डिडंट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी क्वाइट डेंजरस। तो उसने ये कहा देखा कि अगर महाराजा को जल्दी टाइगर नहीं मिला तो वो रिजल्ट काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। अ टाइगर वॉज ब्रॉड फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। तो मद्रास, चेन्नई जिसको हम अभी बोलते हैं, वहाँ से एक टाइगर को लेकर आए वो लोग पीपल्स पार्क से। इट वॉज ब्रॉड स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग। और वो उसी फॉरेस्ट में जाकर उसको रख दिया जहाँ पे वो महाराजा हंटिंग कर रहा था। द महाराजा टुक अ केयरफुल एम एंड द टाइगर फेल इन अ हीप। और वो महाराजा काफ़ी केयरफुल एम के साथ गया और उसने उस टाइगर को भी मारने की कोशिश की। द महाराजा बिकम इलेटेड एट किलिंग द 100th टाइगर। और वो जो महाराजा था वो उसने काफ़ी कोशिश की उसको मारने की, और वो टाइगर जो है वो गिर जाता है और उसको मारकर वो काफ़ी खुश होता है।
The Maharaja became elated at killing the 100th tiger. After he left, the hunters had a closer look at the tiger. The tiger was not dead. और जब वो उसको मार के चला जाता है तो जब उसके हंटर्स ने काफ़ी पास जाकर उस टाइगर को देखते हैं तो वो टाइगर नहीं मरा होता है. तो महाराजा हैड मिस द एम, और वो कहते हैं कि महाराजा ने एम जो निशाना था वो उसका चुक चुका है. They decided that the Maharaja must not know that he had missed the target, so one of the hunters killed the tiger. तो उसने कहा कि ये बात महाराजा को ना पता चले कि कि उसका निशाना चुक चुका था, तो उसके एक हंटर ने क्या किया कि उस टाइगर को मार दिया. The 100th tiger takes its revenge upon the king. A few days later, the Maharaja's son's 3rd birthday was celebrated. The Maharaja bought a wooden tiger from a shop as a special gift on his birthday. On that day, father and son played with the wooden toy tiger. Its surface was rough. उसका जो सरफेस था काफ़ी रफ था. जैसे आप देख सकते हो, सपोज ये टेबल है तो ये टेबल के ऊपर कितना स्मूथ कार्विंग की हुई है ना, सारी लाइंस प्रॉपर है. ओके, तो उसकी जो कार्विंग थी वो काफ़ी ख़राब थी, उसकी प्रॉपर शेप नहीं दी गई थी. ओके, काफ़ी रफ थी. वन ऑफ दोज नीडल लाइक स्लीवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड. तो उसकी जो नीडल्स लकड़ी निकली हुई थी साइड साइड से, वो इतनी तीखी थी जैसे एक लकड़ी, जैसे एक नीडल होती है. ओके, तो वो उसके राइट हैंड में पियर्स करके मीन्स चुभ गई. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड अप इन हिज हैंड. इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सपरेटिंग सोर. और वो धीरे धीरे काफ़ी एक घाव बन गया. 3 सर्जन्स परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन. 3 सर्जरियन भी आए ऑपरेशन करने के लिए. ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया. द महाराजा वॉज डेड. और महाराजा जो था वो मर जाता है वहाँ पे. इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपन द टाइगर किंग. और इस तरह से वो जो 100th टाइगर था वो अपना रिवेंज ले लेता है महाराजा के ऊपर और उसको मार देता है. तो ये एक वहम है, एक एस्ट्रोलॉजी के वहम के ऊपर ये स्टोरी बनी हुई है, द टाइगर किंग. यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. आप इसको रीड कर लेना. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. अगर आपको किसी वर्ड की कोई समझ में नहीं आई या कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क. देन इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अपनी नोटबुक पे लिख लेना एंड सेंड नोटबुक फॉर चेकिंग. ओके, दीज वर द मेन पॉइंट्स. इन मेन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक पे लिखकर मुझे सेंड कर देना. थैंक यू.